filled, right? हम सब भरे हुए हैं, है ना? Yeah, time for the communion word. तो अब प्रभु भोजन का समय है। Uh, let's close our eyes हम अपनी आँखों को बंद करेंगे and just let us just meditate on the cross. और क्रूस पर हम मनन करेंगे। Jesus took all our sickness. यीशु ने हमारे सारे बीमारियों को ले लिया, He took all our pain, उसने हमारे सारे दर्द को ले लिया, all our sins. हमारे सारे पापों को ले लिया। You know, the Bible says, by His stripes we are healed. बाइबल कहती है कि उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा हम चंगे हुए। The stripes that Jesus bore was not ordinary stripes. जो कोड़े यीशु ने सहे वो साधारण नहीं थे। I just want you to picture Jesus मैं चाह रहा हूँ कि आप देखो यीशु को। Thank you, Lord. Thank you for everything you do. धन्यवाद प्रभु हर उस चीज़ के लिए जो तू करता है। We are grateful, Father, हम आभारी हैं प्रभु for the ultimate sacrifice. तेरे बलिदान के लिए। As you are meditating, let us open our eyes. I want to take you back to history just for 10 minutes. जैसे हम मनन कर रहे हैं इस पर, मैं आपको इतिहास में लेकर जाना चाहता हूँ। You know, the Bible says that Jesus was scourged. बाइबल कहती है कि यीशु को कोड़े मारे गए, And there was no one better than scourging than the Roman people. और कोड़े मारने में रोमी लोगों से और बेहतर कोई नहीं था। They used to delight in scourging people. और लोगों को कोड़े मारने में उनको आनंद आता था। Yeah. I just want you to think for 10 minutes what it actually looked like. Just imagine in your thoughts as I'm going to say these things. मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप इन चीज़ों को अपने मन में कल्पना कीजिए। Yeah. First of all, the process of scourging included that you have to undress the entire person. तो कोड़े मारने के लिए सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। No clothes left on the body. कोई भी शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं बाकी होता था। Yeah. Secondly, the hands were tied up to a metal chain. और उनके जो हाथ है वो ऊपर एक लोहे के चेन से बांधे जाते थे। In this movement, in this position. ऐसे हाथों को ऊपर करके, No movement at all. हाथों को वो हिला नहीं पाते थे। And the legs also were tied to a shackles so that there was no movement and the person cannot miss the slashes. और जो उनके पैर है उनको भी इस तरह से बांधे जाते थे ताकि वो अपना बचाव नहीं कर पाए। So the उस मार person से। used to actually be like this for hours and hours till the time the scourging is not done. सो जो व्यक्ति है जिसको कोड़े पड़ते थे उसको इसी तरह से रुकना पड़ता था घंटों तक, जब तक वो कोड़े मारना ख़त्म नहीं करते। Now the thing is, the Romans, they used a weapon called flagrum. और रोमी लोग जो है वो एक हथियार को इस्तेमाल करते थे जिसको फ्लैक्रन बोलते थे। Yeah, it's basically leather belts. तो चमड़े के जो बेल्ट्स होते हैं वो ऐसे वैसे होते थे। The leather belts had nearly 18 to 12 pieces of separate lines in it. और उस चमड़े के पट्टे में 18 से 20 ऐसे अलग अलग रेशे होते थे। Yeah, and those leather, at the end of these leather belts, there was a small kind of a tip which included lots of metals, maybe bones of animals, kaach, glass, metal, so that when they hit, the impact was so much that it used to take the flesh off. तो जो वो रेशे होते थे उनके अंत में ऐसे लोहे के वो वेट लगाते थे और उसमें हड्डी और कांच और नोकीली चीज़ें लगी होती थी ताकि जब वो किसी के शरीर पे लगे तो वो उसको निकालने के समय वो मांस को भी निकालता था। The very thought that a person is going to get scourged used to actually just make the people faint. और सिर्फ ये ख्याल जब लोगों को आता था कि मुझे कोड़े लगने वाले हैं तो इससे भी लोग बेहोश होते थे।
This was one of the worst punishment during the Roman times. और ये एक बहुत बदतर ऐसा पनिशमेंट था। Only the worst of the worst criminal used to get such kind of और जो punishment. सबसे बेकार ऐसे क्रिमिनल्स है उन्हीं लोगों को ऐसी सज़ा मिलती थी। Historians even say that when the Romans used to scourge, the entire back of the person used to get exposed. Like you can see all the spinal cords, you can see their blood vowels, you can see their muscles, everything basically. और जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि जब किसी को कोड़े मारे जाते थे तो उनके अंदर के अवयव हमको दिखते थे, सब सारा चमड़ा हट के अंदर के अवयव हड्डियाँ जो भी है वो हमको दिखती थी। They say that a usual ordinary man was not able to bear more than 5 to 6 whips of that scourge. और एक साधारण मनुष्य 5 या 7 से ज़्यादा वो जो कोड़े है वो नहीं सह सकता था। Because he used to get unconscious, because they used to hit with so much of power. और वो इतने ज़ोर से मारते थे कि उस दर्द से वो बेहोश हो जाते थे। And there was not just one man beating it. और सिर्फ एक मनुष्य नहीं मार रहा था। So one man is taking one turn, as soon as he's done, the other man from the other side is doing that. तो एक मनुष्य मारता था और उसका जैसे ही ख़त्म होता तो दूसरा दूसरी तरफ से मारता। And not only that, imagine when the body is like this hanged, the beatings were not only on the back, but all over the body. और जब शरीर ऐसे ऊपर हाथ करके लटका है तो सिर्फ पीठ पे नहीं लगते थे कोड़े, पूरे शरीर में हर जगह पे लगते थे। From the head till the knees. Imagine, even the horses, historians say, even the horses used to actually get scared with the sound of that whip. और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो घोड़े भी है उस कोड़े की आवाज़ से वो डरते थे। But there was Jesus. और वहाँ पर हम देखते हैं यीशु है। And there he was standing in the midst of all the people. और वो इन सब लोगों के बीच में खड़ा था। And without saying a word, और एक भी शब्द बोले बिना he happily laid down his life. उसने खुशी से अपने प्राण को छोड़ दिया। Bible says that he shed every single drop of his blood for us. बाइबल कहती है कि उसने अपने लहू का हर एक बूंद हमारे लिए बहा दिया। When the scourging took place, और जब ये कोड़े लगते थे 85 to 90% of the blood on the body was almost lost. 85 से 90% जो शरीर का खून है वो चला जाता था। People used to get cardiac attack and they used to die because the body cannot bear so much pain. So the heart used to pump the blood in such a force that sometimes people used to get heart attack and they used to even die. और शरीर ज़ोर से ऐसे धड़कता था उस दर्द के कारण कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक होकर वो मर जाते थे। And think about it, church. और इसके बारे में सोचिए कलीसिया। There was a law of Jews यहूदियों का एक नियम था wherein they would slash a person 39 times. जहाँ पर वो 39 बार लोगों को कोड़े मारते थे। Not 40, because they used to say the 40 used to be a slash wherein the person can die, so they used to only hit 39 times. तो 40 बार वो नहीं मारते थे क्योंकि जो 40वां समय था उस समय वो मर सकते ऐसा वो मानते थे, इसलिए उससे एक कम वो मारते थे। But guess what? लेकिन आप सोचिए, Jesus was scourged at the hands of Romans. यीशु को जो कोड़े मारे गए थे वो यहूदियों के द्वारा नहीं लेकिन रोमियों के द्वारा मारे गए थे। They used to not follow the Jewish law. और वो लोग यहूदियों के नियम का पालन नहीं करते थे They were merciless. और वो दयाहीन थे। They used to beat until they see that the man is completely about to die, basically. और वो उस व्यक्ति को तब तक मारते थे जब तक वो देखते कि अब मरने ही वाला है। So it is possible that Jesus had borne even more than 39 stripes for us. तो ये बहुत संभव है कि यीशु ने हमारे लिए 39 से ज़्यादा कोड़े सहे। After the scourging was done, और ये कोड़े लगने के बाद when they took him to Pilate, जब वो पिलातुस के पास उसको लेकर गए, Pilate was nearly surprised, shocked, और पिलातुस उस यीशु को देखकर अचंभे में पड़ा, because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है in the book of Isaiah, it says, after the scourging, they could not recognize him who he was. कि यशाया में लिखा है कि उसको मारने के बाद में उसको हम देखकर पहचान नहीं पा रहे थे कि वो कौन है। When they hit the whip of the scourge, it used to take the flesh from every part of the body. जब वो कोड़े से उसको मार रहे थे तो वो शरीर के हर एक जगह से
मांस को निकाल रहा था। But Jesus suffered all of this for each and every one of us लेकिन यीशु ने इन सब चीज़ों को सहा आपके और मेरे लिए, because he loves us, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, because he knows क्योंकि वो जानता है that because of his sacrifice, endless number of people, as many as believe in him, are going to get saved. क्योंकि जितने लोग उसके बलिदान के द्वारा वो जानता है कि जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे वो बचाए जाएंगे। Bible says that by these stripes we all are healed. और बाइबल कहता है कि इन कोड़ों के द्वारा हमको चंगाई मिली है। So church, the stripes that Jesus bore, no man can ever bear, would have bore, or no man will ever bear this ever in the future. जो कोड़े यीशु को लगे वो कोई और मनुष्य सह नहीं सकता और भविष्य में भी कोई नहीं इसको सहेगा। The Bible says we are healed. बाइबल कहती है कि हम चंगे हो चुके हैं। The word heal comes from a word Greek called iomai. ये चंगाई का जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा के एक शब्द से आता है। It means iomai. उसका मतलब आयोमाय है। It means physical healing. उसका मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, Not only चंगाई। spiritual healing but physical healing. It refers to a medical term. सिर्फ आत्मिक चंगाई नहीं, लेकिन ये एक मेडिकल टर्म जैसा इस्तेमाल किया जाता है शरीर के बारे में, शरीर के चंगाई के लिए। So as we partake in this communion, जैसे हम इस प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं, let us declare with our mouth तो हम अपने मुंह से कबूल करें that by his stripes कि उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा we all are healed. हम सब चंगे हो चुके हैं। No sickness कोई भी बीमारी can have place. हमारे अंदर जगह नहीं रख सकती है। Yes, it cannot have any place in our body. कोई भी बीमारी का हमारे शरीर में कोई भी जगह नहीं है, Because the proof क्योंकि जो सबूत है is Jesus taking the stripes for us on the cross. वो यीशु है जिसने कोड़े हमारे लिए लिए। And by that very stripes we all are not, it's not that we are going to get healed, but it says in Peter we are already healed. और उन कोड़ों के द्वारा हम चंगे होने वाले नहीं हैं, लेकिन पतरस कहता है कि हम चंगे हो चुके हैं। Yes. Father, we thank you for the ultimate sacrifice पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत बलिदान के लिए that was given for each and every one of us, Lord. जो हम सब के लिए दिया गया था, The body that was broken जो शरीर हमारे लिए तोड़ा गया and the blood that was spilled out for each and every one of us. और जो लहू हम में से हर एक के लिए बहाया गया। Lord, it is so precious. प्रभु ये कितना कीमती है। Help us to realize the cost of it, Father. हमें मदद कर कि इसकी कीमत को हम समझें। And Father, I pray that let no man और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी मनुष्य walk in darkness, अंधेरे में नहीं चले, but let them walk in the truth of your light. लेकिन तेरी ज्योति की सच्चाई में वो चले, Because your word is light unto our feet. क्योंकि तेरा वचन जो है हमारे कदमों के लिए ज्योति है। And your word says that we are healed by the blood of Jesus Christ, by his stripes. और तेरा वचन कहता है कि यीशु के लगे हुए कोड़ों के द्वारा हम चंगे हो गए We have been made a new creation. और हमको एक नई सृष्टि बनाया है। We have been redeemed. हमको तूने आज़ाद किया, छुड़ाया है You have bought us from the kingdom of darkness unto the kingdom of light, Father. और तूने अंधकार के राज्य से हमको ज्योति के राज्य में लाया है। Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता, Thank you, Jesus, for this ultimate sacrifice. धन्यवाद यीशु तेरे अद्भुत बलिदान के लिए। As we receive this bread and this wine, जैसे हम इस रोटी और इस दाखरस को स्वीकारते हैं, we receive it with blessing, Lord. हम उसको आशीष के साथ स्वीकारते हैं And we believe all the promises are yes and amen. और हम विश्वास करते हैं कि तेरे सारे जो वादे हैं वो हाँ और आमीन है And they are all for us in the name of और वो Jesus. सारे हमारे लिए हैं यीशु के नाम से। Let us take the bread and the wine. हम प्रभु भोजन में भाग लेंगे। Thank you.
Praise the Lord. Praise the Lord. So सबको जय मसीह की। तो आज बहुत बड़ी आराधना हुई। कुछ अनाउंसमेंट है, तो जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे, तो हमारी जो सभा है वो जैसे कि आपको पता है इन पर्सन होती है। तो आप संडे को यहाँ पे आ सकते हैं। संडे 10:30 बजे से सभा होती है यहाँ पे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होती है। और हमारा जो YouTube चैनल है जहाँ पे आप ये देख रहे हो सभा, वहाँ पे और भी मैसेजेस है जो आप जाके देख सकते हो, जिससे आप सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें जो आपके आने के पहले बताई गई है। बहुत सारे वचन है, संदेश है, लॉकडाउन के समय में बहुत सारे संदेश थे, तो सब रिकॉर्डेड है। आपको किसी भी टॉपिक पे सीखना है वचन, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और सीख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज का एक पार्ट है KBS, किंगडम बाइबल स्कूल, जो बच्चों के लिए है। तो जैसे हमें पता है कि हमें एक चर्च की ज़रूरत है, वैसे बच्चों को भी चर्च की ज़रूरत होती है ना। शैतान कभी ये नहीं सोचता कि ये बच्चों को मैं बुरा नहीं सिखाऊंगा, ये बच्चे हैं। वो बचपन से ही बच्चों के पीछे पड़ा होता है। तो हमें भी सतर्क रहना है, बच्चों को बचपन से ही प्रभु के वचन में बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप बच्चों को ला सकते हो। ये सभा संडे को होती है बच्चों के लिए भी। और आपके स्क्रीन पे एक QR कोड होगा, जिससे आप नॉर्मल कैमरा से स्कैन करके एक वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस होती है, वहाँ पे आप अपने बच्चों को मतलब भेज सकते हो, घर से ही वो ज्वाइन कर सकते हैं और बच्चे वचन में बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हफ्ते के 7 दिन में से सिर्फ एक दिन चर्च में बच्चों को लाने से बच्चों में बदलाव नहीं आ सकता। उनको भी एक आदत लगनी चाहिए, जो हमें भी है कि हम वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, वैसे उन्हें भी बचपन से आदत होनी चाहिए। क्योंकि वचन कहता है कि बचपन से अगर बच्चों को हम उस मार्ग में तैयार करें तो वो आगे भटकेंगे नहीं, है ना। तो हमें ये करना है, तो आप बच्चों को भेज सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा ऑफरिंग बॉक्स है, QR कोड है। तो आपको प्रभु के राज्य में अगर बोना है किसी को, तो आप बो सकते हो। आपके स्क्रीन पे भी QR कोड दिखेगा आपको बीच में, वहाँ पे भी आप बो सकते हो। और अगर किसी को साक्षी बांटनी है तो अंत में आप अलीशा सिस्टर से मिल सकते हैं। तो आप उनको अपनी साक्षी बताइए, फिर वो अंत में आके यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम वचन की शुरुआत करते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज वचन शेयर करने के लिए हमारे 2 वाइब्रेंट ब्रदर्स, जो हमेशा क्या बोलते उससे, पवित्र आत्मा उनके द्वारा बहुत सब वाइब्रेंट कर देता है, एकदम सबको हिला के जगह पे लेके आता है ना। प्रभु की जो हमारी पहचान है, असली पहचान में हमको लाता है ना। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा ब्रदर क्लिफर्ड और ब्रदर आशीष का। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। The anointing is so beautiful in the house. अभिषेक बहुत सुंदर रूप में इस जगह पर है। The presence of Jesus is so beautiful in the house. यीशु मसीह की उपस्थिति बहुत सुंदर रूप से इस जगह पर है। Just lift your hands to the King. Thank you, Lord. अपने हाथों को उस राज्य के लिए ऊंचा करें। Forever you will be the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee and I worship you, Lord. Saints, lift your hands and tell him, forever you will be the Lamb upon the throne, upon the throne. I'll gladly bow my knee
worship you alone. All heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be, forevermore, the Lamb upon the throne. upon the throne. I'll gladly bow my knee Bow my knee, and I worship you alone. हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना। तेरी आराधना। One more time, tell it. हमेशा के लिए हमेशा ओ तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना। तेरी आराधना। ओ हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना। तेरी आराधना। Forever you will be, forevermore, the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee I bow my knee and worship you alone. worship you alone. The Lord is healing somebody of asthma over here. परमेश्वर किसी को अस्थमा से चंगाई दे रहा है। That asthma is getting healed right now. It's leaving your body. अस्थमा आपको छोड़ के जा रहा है, आप चंगे हो रहे हो। There's healing when you worship the King. जब आप उस राजा की आराधना करते हो तो वहाँ चंगाई होती है। Any sickness in your body will just leave you. कोई भी बीमारी जो आपके शरीर में है वो आपको छोड़ के निकल जाएगी। When you start worshiping the King, जब आप उस राजा की आराधना करना शुरू करोगे, nothing you have to do but worship Him. कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल उसकी आराधना करे, Worship the Master. उस प्रभु की आराधना करे, Worship the Lamb of God. उस मेमने की आराधना करे, You will be automatically healed. आप अपने आप चंगे हो जाओगे। Oh Gabashende. हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। Oh saints, just continue to worship Him. संतो उसकी आराधना करना शुरू रखे। Forget about yourself. अपने खुद के बारे में भूल जाइए, Forget about the message.
यहाँ से होने वाले प्रचार के बारे में भूल Forget जाइए, about everything and anything. सब कुछ आप भूल जाइए, Only you and Jesus. केवल आप और यीशु। You are King. Forever you will be. Forevermore, The Lamb upon the throne. upon the throne, I'll gladly bow my knee. I bow my knee And I worship you alone. worship you alone. You know, the Master just spoke to me right now. प्रभु ने मुझसे अभी बात की And he told me that it is his number one desire to see his people living in divine health. और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मेरे लोगों ने दैवीय स्वास्थ्य में चलना चाहिए। He doesn't want anyone to be sick. वो नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बीमार रहे। He wants everybody of his children to live in divine health. वो चाहता है कि उसके सभी बच्चे दैवीय आरोग्य में जिए। Hallelujah. Lift your hands and call his name Jesus. अपने हाथों को ऊंचा करें, उसके नाम को पुकारे, यीशु। Say Jesus. कहिए यीशु, Sweet Jesus. प्यारे यीशु, Wonderful Jesus. अद्भुत यीशु, Blessed Jesus. धन्यवादित यीशु। You alone are seated on the throne. आप इकलौते उस सिंहासन पर विराजमान हो। You are the one who rose again from the dead. आप हो जो मरे हुए में से जीवित हो उठे। You are seated at God's right hand. आप परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हो And you are alive forevermore. और आप हमेशा के लिए जीवित हो। And this morning we have come to give you the glory. और इस सुबह हम केवल आपको महिमा देने के लिए We आए have come हैं। to give you the worship and the adoration, Lord. हम आपको ही केवल आराधना देने आए हैं, आपको स्तुति करने आए हैं For प्रभु। thine is the kingdom, the power and the glory. क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप ही की है प्रभु। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाथ उठा के कहिए उनसे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने
मुझे मुक्ति और चंगाई दे दिए। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबा 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 बाबा, we give you praise. आपकी स्तुति करते प्रभु। Worthy is the Lamb. वो मेमना योग्य है, Worthy is the Lamb. वो मेमना योग्य है। You are holy, holy. Choir, sing it with me. Are you Lord God Almighty? Worthy, Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. worthy are you, Lord God Almighty. Worthy, Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? worthy, Worthy is the Lamb, you are Lord. worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. yes, you are. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, Worthy, worthy is the Lamb, worthy, worthy, oh, worthy is the Lamb. you are Holy, yes, you are. holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb,
Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. He is worthy. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are holy. Yes, you are. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Yeah. Worthy is the Lamb. You are holy. Tell him, church. Holy. Our God is holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy, yeah. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are holy. Jesus, you are Lord, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Give the Lord a mighty hand of praise. प्रभु के लिए Hallelujah. तालियां बजाएं जोर Wow. से. My God. Thank you. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Musicians, thank you. Thank you, musicians. Thank you. Hallelujah. Our God is worthy of worship. हमारा प्रभु आराधना के योग्य है. Jesus deserves the best. यीशु मसीह वो उत्तम डिजर्व करता है. He is the King of Kings and the Lord of Lords. वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है. You know, as a church, I just want you to just lift your hands. Just lift them up. मैं कलीसिया के नाते कहना चाहूँगा कि हम सभी अपने हाथों को ऊंचा करें. Tell him you are Lord. कहिए तू प्रभु है. Tell him again, you are Lord. कहिए कि प्रभु तू प्रभु है. You are Lord. 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 तू प्रभु है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. You know, the meaning of the word Lord means owner. जो प्रभु ये शब्द है उसका मतलब है मालिक. Jesus is the owner of heavens and the earth. यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है. And the scripture says that he has made us heirs and joint heirs with him. और वचन कहता है कि उसने हमें यीशु मसीह के साथ संगी वारिस, उसके साथ में वारिस बनाया है. Hallelujah. Sangi varis. I like that word. Sangi varis. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Oh, संगी वारिस. बोलिए मैं संगी वारिस हूँ. मसीहा के साथ में संगी वारिस हूँ. आमेन. साथ में मैं संगी वारिस हूँ. Hallelujah. हालेलुया. That means not 50-50%. उसका मतलब 50-50% नहीं है. That means 100% यीशु का और 100% मेरा. आमेन. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Wow. The creator of heavens and the earth has made you a संगी वारिस. जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, उसने यीशु के साथ हमें संगी वारिस बनाया है. Hallelujah. हालेलुया. You know, just before I can get into the word, वचन में जाने से पहले I'd like to share a small salvation message because I see new people come in today. तो वचन में जाने से पहले मैं जो सुसमाचार है वो थोड़ा सा बांटना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ नए लोग हैं. We always put things first, right?
तो हम पहली चीज़ों को पहला स्थान देते हैं। We have heard the gospel. The church has heard the gospel many a times. तो चर्च के लोगों ने जो सुसमाचार उसको बहुत बार सुना है, But I think the world has not heard the gospel. लेकिन जो संसार है उसने उस सुसमाचार को नहीं सुना, They have every right to hear the gospel. और उनका अधिकार है कि उन्होंने सुसमाचार सुनना चाहिए। Before we could come to the Lord, we heard the gospel. प्रभु यीशु के पास आने से पहले हमने सुसमाचार को सुना, Then we gave our hearts to Him. फिर हमने अपना हृदय उसको दिया, And then we became His kingdom citizens. और उसके बाद में हम उसके राज्य के लोग हुए। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You know, when Brother Sam was ministering, where's Brother Sam? तो जब भाई सैम जब यहाँ पर बांट रहे थे वचन, When he was talking. No. Sam Angre. He's not there? Okay. Man, the anointing was so heavy upon him. तो अभिषेक बहुत गहरे रूप में उनके ऊपर था। I was sitting over there. मैं वहाँ पीछे बैठा था, I didn't feel like getting up from that place. और मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैंने वहाँ से उठना चाहिए। I felt like, Lord, let him continue. मैं चाह रहा था कि प्रभु होने दीजिए, वो कंटिन्यू करे और बांटे, Because the anointing was so beautiful. क्योंकि जो अभिषेक है बहुत सुंदर रूप से वहाँ पर था। Hallelujah. हालेलुया। He almost preached 90% of my sermon. तो उन्होंने 90% मेरे जो प्रचार है उसको पहले ही प्रचार कर दिया है उसका, Left nothing for me, only 10%. और मेरे लिए केवल 10% छोड़ा। Hallelujah. हालेलुया। All right, you know, for the ones who have come for the first time, तो जो पहली बार आए हैं, I'm here to tell you that God is not mad at you. He is madly in love with you. तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं है, लेकिन वो पागलों की तरह आपसे प्रेम करता है। Paglo ki tarah. Wow, that's amazing. He's madly in love with you. वो आपसे पागलों की तरह प्रेम करता है। You know, this used to be my slogan. तो ये मेरा स्लोगन हुआ करता था। I think, you know, Pepsi had a slogan, right? Pepsi had a slogan. जैसे पेप्सी का स्लोगन था, यही है right choice, baby, aha. यीशु को जिसने स्वीकारा वही है right choice. आमेन, हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Wow. So God Almighty loves us so much तो प्रभु परमेश्वर हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं that He could not see you in trouble. कि वो आपको परेशानी में, आपके तकलीफों में नहीं देख सकता। He could not see you in sickness. वो आपको आपकी बीमारी में नहीं देख सका, He could not see you in your sin. वो आपको आपके पाप में नहीं देख सका, Because the scripture says through one man, that is Adam, sin entered into this world. क्योंकि वचन कहता है कि एक मनुष्य जो आदम था उसके द्वारा पाप इस धरती पर आया, And with sin, death also entered. और पाप के साथ में मृत्यु भी आई, And death passed upon all men. और जो मृत्यु है वो सब मनुष्य में फैल गई। We were called sinners is not because we sinned, but because we were born in sin. हमें पापी इसलिए नहीं कहा गया कि हमने पाप किया, लेकिन हमारा जन्म पाप में हुआ, इसलिए हमें पापी कहा गया। The scripture says there is not one righteous, no, not one. वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी मनुष्य नहीं। All have sinned and fall short of the glory of God. सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, All are guilty सभी दोषी थे because of one man. एक मनुष्य के कारण। So there had to be somebody who was perfect. तो कोई एक मनुष्य चाहिए था जो परिपूर्ण है, जो सिद्ध है। God found none. परमेश्वर को कोई नहीं मिला, Because every person who is born of a man, he is born as a sinner. जिस किसी का भी जन्म मनुष्य के द्वारा हुआ है वो पापी के रूप में उसका जन्म हुआ है। It's like a dog will give birth to another dog. ये ऐसा है कि जैसा एक कुत्ता है वो कुत्ते को ही जन्म देता है, A cat will give birth to another cat. जो बिल्ली है वो बिल्ली को ही जन्म देती है, A giraffe will give birth to another giraffe. तो जिराफ है वो जिराफ को ही जन्म देता है। So Adam, who is a sinner, will give birth to another man who is a sinner. तो जो आदम है जो पाप में है वो जिसे जन्म देगा वो भी पाप में ही रहेगा। So if a person is born of a man, whether he likes it or not, whether he knows it or not, by default he is born in sin. तो जो मनुष्य है जिसका जन्म हुआ है, उसको पता हो या ना हो, या उसको पसंद हो या ना हो, लेकिन उसका जन्म पाप में ही हुआ है। That's why God had to leave heaven
and become a man. इसलिए परमेश्वर को चाहिए ताकि उसने स्वर्ग छोड़े और इस धरती पर आए मनुष्य बने, He had to be born of a virgin. और उसका जन्म कुंवारे के द्वारा ही होना चाहिए। His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। He is the only one to be born of a virgin. वो इकलौता है जिसका जन्म कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ। Wow, that was a miracle birth, isn't it? कितना चमत्कारिक उसका जन्म था। There is no person who can be born of a virgin. कोई भी ऐसा नहीं जिसका जन्म कुंवारी के द्वारा हो सकता है। Had Jesus been born of any man, he would have been born as a sinner. अगर यीशु का जन्म किसी मनुष्य के द्वारा हुआ होता, किसी आदमी के द्वारा, तो वो भी एक पापी के रूप में उसका जन्म हुआ होता। At conception itself, he would have been disqualified to die for humanity. तो जो गर्भधारण के समय ही वो पाप आपके लिए उद्धार का कारण बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाता। That's the reason he had to be born of a virgin. इस यही कारण था कि उसको कुंवारी के द्वारा गर्भ में जन्म लेना निश्चित था। When the angel came to Mary and said that you will bring forth a child and you will call his name Jesus. तो जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, उसको कहा कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, उसका नाम तुम यीशु रखोगी। Mary asked the angel, how is it possible? I have no relationship with any man. How can I give birth to a child? मरियम ने कहा कि यह कैसा संभव है, मैं किसी मनुष्य को जानती भी नहीं, तो मैं जन्म कैसे दूंगी। The Bible declares, the angel said, the Holy Spirit will come upon you. तो वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, And the power of the highest shall overshadow you. और जो सर्वसामर्थी परमेश्वर है उसका सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर आएगा। And that which is born in you is not born of any man, but he is born of God. और जो पुत्र तुम जिसका जन्म दोगे वो किसी मनुष्य के द्वारा जन्मेगा नहीं, लेकिन सर्वसामर्थी परमेश्वर के द्वारा उसका जन्म होगा। Jesus is the only one to be born of the Holy Spirit. यीशु मसीह इकलौता है जिसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। Because he was not born of any man, there is no sin in him. क्योंकि उसका जन्म किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, इसलिए उसमें कोई भी पाप नहीं। He was born of a virgin. उसका जन्म कुंवारी के द्वारा हुआ। You know, medical science, they say that when a child is born, जो मेडिकल साइंस है वो कहता है कि जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है, the Lord has designed the womb of a woman in such a way तो परमेश्वर ने जो स्त्री है उसके गर्भ की रचना इस प्रकार से की है that when the child is born in the womb, कि जब वो बच्चे का जन्म उस गर्भ में होता है, the blood of the mother doesn't mix with the child. तो जो माँ का जो खून है वो बच्चे के खून के साथ मिक्स नहीं होता। The blood comes completely, the blood comes from the father and not from the mother. तो जो खून है वो पिता की ओर से आता है, माँ की ओर से नहीं होता। That's why Mary's blood was not mixed with the blood of Jesus. तो मरियम का जो खून था वो यीशु के खून के साथ मिक्स नहीं हुआ। Jesus had the blood of heaven. यीशु का खून स्वर्ग का खून था। The blood came from heaven. वो जो खून था वो स्वर्ग से आया। The blood came from his heavenly father. जो खून था उसके स्वर्ग के पिता से आया। That's why there was no sin in his blood. इसलिए उसके खून में कोई भी पाप नहीं। Now when the time came that he had to pay the price for humanity, और इसलिए जब वो समय आया कि वो इस संसार के लिए उस कीमत को चुकाए, God Almighty made his son Jesus to go for you and for me on the cross. तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसके बेटे यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर जाने दिया। The Bible declares, you know, they were the Roman soldiers, they were plucking his beard. तो वचन कहता है कि जो रोमी जो सिपाही थे वो उसके दाढ़ी को नोच रहे थे। They put a crown of thorns on his head. उन्होंने कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा They started hitting him on his head with a bamboo. और उन्होंने उसके सिर पर बांबू से मारना शुरू किया। Those thorns started entering his skull. और जो कांटे थे उसके सिर में घुसना शुरू हुए। And then they started plucking his beard. और उन्होंने उसकी दाढ़ी को नोचना शुरू किया। And when they were plucking his beard, और जब वो उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे, the skin of the face started hanging off. और जो शरीर की जो चेहरे की जो चमड़ी थी वो निकलना शुरू हुई। And they started spitting upon his face. और वो उसके ऊपर थूकना उन्होंने शुरू किया। Can you imagine, saints? The one who took his hand and formed mankind in his image and his likeness. क्या आप ये कल्पना कर सकते कि जो परमेश्वर जिसने अपने हाथों से इस सृष्टि को, इस मनुष्य जाति की रचना की, That very man whom he created in his image and his likeness started spitting upon his face. वही मनुष्य जिसने उसने अपने खुद के हाथों से अपनी स्वरूप और समानता में रचा था, वही मनुष्य उसकी दाढ़ी को नोच रहा था। And they spat upon the scripture says that they spat upon his face. Now there was spit mingled with blood.
और वचन कहता है कि वो उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसका खून उस थूक के साथ मिक्स हो गया। And then they tied him to a pole and started scourging his back. और फिर बाद में उन्होंने उसके पीठ को मारना शुरू किया। Like Brother Sam was ministering, there were dead bones animals and glass pieces attached to that hunter. तो जो वो कोड़े थे उसको मरे हुए जो जानवर है उसकी हड्डियां और मेटल जो है वो लगे हुए थे। There were small metal balls that were there in the hunter. जो धातु के जो बॉल है वो उस फटकों में लगे हुए थे। Yeah, so when they whipped his back, तो जब उन्होंने उसके पीठ पर मारा, that particular hunter used to roll in his flesh, all roll over. It was the whole, his body was rolled in that hunter. तो जब वो कोड़े मार रहे थे तो उसका पूरा शरीर उस कोड़ों में लपेटा जा रहा था। So those metal balls started rolling in his flesh. तो जो बॉल थे, जो धातु के बॉल थे, वो उसके शरीर में जा रहे थे। And when they pulled it, और जब वो उसको खींच रहे थे, उस कोड़े को खींच रहे थे, pieces of flesh started flying out of his body. तो उसके शरीर के जो स्किन है वो चित्रों के समान निकल रही थी। And that ripped him so badly that now his bones were visible. और उसको इस तरह से उस पर प्रभाव हुआ कि उसकी हड्डियां दिखना शुरू हुई। And then he had to carry the cross. और उसके बाद उसको क्रूस लेके जाना पड़ा। The bones which were already exposed were right now brushing with the wood that he was carrying. तो जब वो उस क्रूस को लेके जा रहा था तो उसकी जो हड्डियां जो दिख रही थी वो एक दूसरे के साथ में घर्षण कर रही थी। The Bible declares that Jesus says, "All my bones are out of my joints." यीशु मसीह के बाइबल में कहता है कि मेरी सारी हड्डियां उसके जॉइंट से बाहर निकली है। They look and stare at me. वो मेरी ओर देख कर मुझे घूर रही है। The bones of Jesus Christ were staring at him. यीशु मसीह की जो हड्डियां है वो उसको घूर के देख रही थी। And then they took him to the cross. और उसके बाद में उन्होंने उसको क्रूस पे लेके गए। They nailed him to the tree. उन्होंने उसको उस क्रूस पे उसको लटकाया। Jesus said, "They pierced my hands and my feet." यीशु मसीह कहता है कि उन्होंने मेरे हाथों और पैरों को छेदा। And then he died for you and for me on the cross. और उसके बाद वो आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर मरा। The scripture says they buried him in a tomb. They buried him in the tomb. और वचन कहता है कि उन्होंने उसको दफनाया। But he didn't stay over there. लेकिन वो उस कब्र में नहीं रहा। Hallelujah. हालेलुया। He is the only one. वो इकलौता है। Jesus is the only one who rose again from the dead. यीशु मसीह इकलौता है जो मरे हुए में से जीवित हो उठा। Hallelujah. हालेलुया। He said, I was dead. वो कहता कि मैं मरा हुआ था, And behold, I'm alive forevermore. बट अब देखो कि मैं जीवित हो गया हूँ हमेशा के लिए। And I hold the keys of hell and of death. और मेरे हाथ में स्वर्ग और नरक की कुंजियां है। The keys of hell and of death are not in the hands of the devil. They are in the hands of Jesus. स्वर्ग और नरक की कुंजियां शैतान के पास में नहीं लेकिन यीशु के पास में है। Hallelujah. हालेलुया। He is the only one who rose again from the dead. वो इकलौता है जो मरे हुए में से जीवित हो उठा। And today he's telling you all, और वो आज हमसे कह रहा है, behold, I stand at the door of your heart and knock. मैं आज तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। He who opens the door, जो कोई इस दरवाजे को खोलेगा, I will come into him मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा and live in him. और उसके अंदर मैं रहूंगा। See, the scripture says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, वचन कहता है कि अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह प्रभु है, and believe in your heart that God has raised him from the dead, और मन में विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया है, you will be saved. तो तुम उद्धार पाओगे। See, the greatest miracle is not the healing of a cancer. तो जो सबसे बड़ा चमत्कार वो ये नहीं कि कोई कैंसर से चंगा हो गया। The greatest miracle is not somebody who comes out of a wheelchair. बड़ा चमत्कार ये नहीं कि कोई व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। The greatest miracle is not even raising the dead. बड़ा चमत्कार ये नहीं कि कोई मरे हुए में से किसी को जिलाया गया। The greatest miracle is when one is born again, when he is saved. लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जब किसी का उद्धार होता है, वो नया जन्म पाता है। That is the greatest miracle. वो सबसे बड़ा चमत्कार है। Hallelujah. हालेलुया। If you give your heart to Jesus, अगर आप अपने हृदय को यीशु मसीह को दोगे, He will change your life. वो आपके जीवन को बदल देगा। Even the ones who are watching, वो भी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, there's somebody who is watching me online. Your name is Abhinav. कोई हमें ऑनलाइन देख रहा है जिनका नाम है अभिनव, And you're telling in your mind that what this man is staring, is it real? तो आप सोच रहे हैं कि ये जो मनुष्य बोल रहा है कि ये सच है, And you have a growth somewhere in your body. और आपके शरीर में कहीं तो ऐसे गांठ है। And even when I was ministering the word of God, और जब मैं परमेश्वर के वचन को बांट रहा था, you started feeling some warm sensation in your body. तो आपको अपने शरीर में से गर्माहट महसूस हो रही थी। That growth is dematerializing.
तो जो गांठ है वो निकल जा रही है। You are healed in the name of आप Jesus. यीशु के नाम से चंगे हो चुके हो। Give your hearts to the Lord. अपने हृदय को यीशु को दीजिए, He's calling you. वो आपको पुकार रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। So all that you say, all that you got to do is just say, Jesus, come into my life. That's it. आपको केवल इतना ही कहना है कि यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए। Say, Lord Jesus, कहिए, प्रभु यीशु, I believe you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। Say it loudly. जोर Lord से Jesus. कहिए, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I believe you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। I believe that you came to earth मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस धरती पर आए and died for me on the cross. और उस क्रूस पर मेरे लिए मरे। I believe that you shed your blood for me. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपने लहू को मेरे लिए बहाया। I believe that you were buried. मैं विश्वास करता हूँ कि आपको दफनाया गया। I believe that you rose again from the dead मैं विश्वास करता हूँ कि आप पुनरुत्थित हुए उस मृत्यु में से and you are alive और forevermore. आप हमेशा के लिए जीवित हो। I declare मैं घोषणा करता हूँ that Jesus, कि यीशु मसीह, you are my Lord. आप मेरे प्रभु हो। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Welcome to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। Wow. Hallelujah. Now the Lord will minister to the church. तभी प्रभु जो चर्च के लोग हैं उनकी सेवकाई करेगा। You know, the Lord is very much interested in listening and answering our prayers more than we are interested in getting our prayers answered. तो आप जानते हैं कि प्रभु हमें हमारी प्रार्थना के उत्तर देने में हमसे ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है। Because the Lord said, ask, very simple. क्योंकि प्रभु ने कहा बहुत ही सीधे साधारण तरीके से कहा कि मांगो। He didn't say, ask and then let me see whether you are good, then I'll answer. प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम मांगो फिर मैं देखूंगा कि तुम अच्छे हो तो ही मैं उसका उत्तर दूंगा, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। He didn't say, ask and let me see if you have obeyed all the laws and then I will give you. उसने ऐसा भी नहीं कहा कि तुम मुझे मांगो फिर मैं देखूंगा कि तुमने सारे नियमों का पालन किए है या नहीं। He said, ask and you shall receive. उसने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you shall find. ढूंढो तो तुम उसे पाओगे, Knock and it will be opened unto you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। For everyone that asketh receiveth. क्योंकि जो कोई मांगता है वो पाता है, He that seeketh findeth. जो कोई ढूंढता है वो उसको मिलता है, And he that knocketh, the door will be opened unto और जो him. खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। Hallelujah. हालेलुया। God is not a man to lie, परमेश्वर ऐसा मनुष्य नहीं कि वो जो झूठ बोले, or the son of man that he should repent. कि ऐसा मनुष्य का पुत्र नहीं कि जो फिर से पश्चाताप करे। Did he not say it? Will he not do it? उसने नहीं कहा कि मैं ये करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, his name is truth. यीशु मसीह उसका नाम सत्य है। Jesus didn't say, I have a truth, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास सत्य है, or I'm looking for a truth. या फिर ऐसा भी नहीं कहा कि मैं सत्य को ढूंढ रहा हूँ। He said, I am the truth. उसने कहा लेकिन उसने कहा कि मैं ही सत्य हूँ। There is only one thing that Jesus cannot do. केवल एक चीज है जो यीशु मसीह नहीं कर सकते। Everything he can do. वो सब कुछ कर सकते हैं, From the creation to the raising of dead, you name it. सृष्टि की उत्पत्ति से लेके मरे हुए को जिलाने से लेकर हर एक चीज वो कर सकते हैं। There is only one thing he cannot do. केवल एक चीज है वो जो वो नहीं कर सकते, He cannot tell a lie. वो झूठ नहीं बोल सकते। Hallelujah. हालेलुया। Whenever the Lord speaks, he speaks nothing but the truth. परमेश्वर जो कुछ बोलते हैं वो केवल सत्य ही को बोलते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You know, I've seen a lot of people when it comes to prayer, तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जब प्रार्थना की बात आती है they carry a shopping list with them तो वो उनकी एक बहुत बड़ी शॉपिंग लिस्ट को लेकर प्रार्थना करते हैं, as if they are entering a shopping center. जैसे कि वो कोई शॉपिंग सेंटर में जा रहे हो। And then you have a list from here to there. फिर उनके पास इतनी बड़ी लिस्ट होती है And 99% of the prayer is all shopping list. और उनकी 99% जो प्रार्थना होती है केवल उनकी शॉपिंग लिस्ट होती है। You know, the Lord is so awesome. क्या आप जानते हैं कि प्रभु कितना अद्भुत है? I really can understand at times when the Bible declares that all things are yours, so what do you ask from the Lord? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब परमेश्वर कहता है कि सब चीजें तुम्हारी है तो फिर हमें परमेश्वर से क्या मांगना? Listen, the access
through the throne of God is thanksgiving and praise. तो परमेश्वर के सिंहासन तक जाने का जो रास्ता है वो है उसको धन्यवाद देना और उसकी स्तुति करना। Church, can I tell you something? चर्च, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? If I say 95% of our prayer, what we call a prayer, is only thanksgiving and praise, whatever is your expectation, He will manifest it beyond your expectation, everything that you will get. आमेन, आमेन। तो अगर आप जानते हो कि अगर आपकी 95% प्रार्थना जो है अगर वो धन्यवाद और स्तुति की बनी रहेगी तो आप जो कुछ कल्पना कर रहे हो उससे भी ज्यादा परमेश्वर आपको देगा। Lot of people try to inform a misinformed God. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर को ये चीज पता नहीं, मैं परमेश्वर को ये चीज बताऊंगा। लॉर्ड, तुझे शायद से पता नहीं, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बताता तुझे क्या हो गया। The scripture says he knows the end from the beginning. वचन कहता है कि उसको आदि से ही अंत का पता है। Listen, if he doesn't know the end from the beginning, that means वो प्रभु है ही नहीं. He is not God. वो प्रभु नहीं है। You know, the Lord doesn't get the shock of his life. अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? If that is the case, you are serving the wrong God. अगर ऐसी चीज है तो आप गलत परमेश्वर की आराधना या उसकी सेवा कर रहे हो। Our God knows everything about us, everything in and out. Before you were formed in your mother's womb, He knew you. आमेन। हमारा प्रभु हमारे विषय में सब जानता है। हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसको हमारे बारे में सब कुछ पता था। You know, prayer is just being with Jesus. आपको पता है प्रार्थना उसका मतलब है केवल यीशु के साथ में रहना। Prayer is being with Jesus. प्रार्थना उसका मतलब है कि यीशु के साथ रहना, Fellowshipping with Him. उसके साथ सहभागिता करना। You know, saints, Jesus has feelings संतो, आपको पता है क्या कि यीशु मसीह की भी भावनाएं हैं? because He cried. क्योंकि वो रोया। The scripture says He cried. वचन कहता है कि वो रोया। When He was at Lazarus' tomb, He cried. जब वो लाजरस की कब्र के पास था तो वो रोया, ऐसा वचन कहता है। He has emotions. उसका मतलब है कि उसकी भी भावनाएं हैं। The scripture says God is touched with the feelings of our infirmities. वचन कहता है कि जब हमारे जो कमजोरियां, बीमारियां, उससे उसको दुख पहुंचता है। So when we pray, तो जब हम प्रार्थना करते हैं 99% of our prayer, if it is just thanksgiving and praising Him, saints, it's going to be glorious. अगर हमारी 99% प्रार्थना केवल उसको धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना होगा तो काफी महिमा वाला चीज होगी वो। You won't check out the timing, how many hours did I pray? आप ये चेक नहीं करोगे कि कितने समय मैंने प्रार्थना की, Because you are just having fellowship with Him, क्योंकि आप उसके साथ में सहभागिता कर रहे हो, thanking Him, उसको धन्यवाद दे रहे हो, giving Him thanks at all times. उसको हमेशा धन्यवाद दे रहे हो। You know, God wants us to have a thankful heart, परमेश्वर चाहता है कि हमारा दिल धन्यवादित दिल बने, not a murmuring heart. कुड़कुड़ाने वाला दिल नहीं। Not saying, Lord, I've been praying for this for the last 5 years. You're not even bothered to answer this prayer. आप ऐसा कह रहे हो कि प्रभु मैं 5 साल से इसके बारे में प्रार्थना करता हूं, आपको उसका उत्तर देने का भी नहीं जमा। Listen, the Lord is not an errand boy. सुनिए, प्रभु कोई काम करने के लिए कोई छोटा लड़का जैसे काम करता है वैसा नहीं है। Jesus is not घर का रामू, I'm telling you. यीशु मसीह जो घर का काम करने वाला रामू नहीं है, He is God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर He है। is the creator of heavens and the earth. वो स्वर्ग का बनाने वाला परमेश्वर Even है। if He doesn't answer our prayers, He is still God. अगर वो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं भी देता फिर भी वो प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। All that He wants is child to just fellowship with Him. वो केवल यही चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो उसके साथ में सहभागिता None करें। of you all seated in this place can ever say that the Lord has not blessed them. यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ऐसा नहीं कह सकती कि परमेश्वर ने मुझे कभी आशीर्वादित नहीं किया। Oh, we know that we face challenges. हम जानते हैं कि हम परिस्थितियों का सामना करते हैं, Sometimes troubles comes our way. कभी कभी विकट परिस्थिति आती है, But the scripture says in all these things we are more than a conqueror to Him that loved us. वचन कहता कि इनमें भी हम विजय महाविजयी है
कि उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। See, the Lord said, you will pass through the water, परमेश्वर कहता है कि तुम पानी में से जाओगे but you will not be drowned. लेकिन तुम डूबोगे नहीं। You will pass through the fire, तुम आग अग्नि में से जाओगे but you will not be burned. लेकिन तुम आग से उस जलोगे नहीं, Because I am with you all the time. क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So, the Lord wants us to just be having a thankful heart and thanking Him from everything. प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक का दिल धन्यवादित हो और हर चीज में हम उसको धन्यवाद दें। If you look at the book of Thessalonians, it says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में वचन कहता है कि हर एक चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। Now, there are a lot of people who know that I have a prophetic calling upon my life. तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मुझ पर भविष्यवाणी का जो बुलाहट वो मेरे ऊपर है, And the prophetic is in greater manifestation. और जो भविष्यवाणी का वरदान है बड़ी मात्रा में दिखता है। So many a time they will come and tell me, प्रभु मेरे बारे में क्या बोल रहा है, प्रभु मेरे में क्या बोल रहा है। So many people come and ask me what Lord is telling about me. मैं बोलता हूँ उनको, अरे तुम्हारे बारे में मेरे को क्यों बोलेगा प्रभु, तुम्हारे बारे में तुमको बोलेगा ना, तू जाके पूछना उसको। So why should Lord tell me about you? You go and ask Lord what He wants from you. सेकंड पर्सन से क्यों आता है, जाके डायरेक्ट बिंदास पूछना। Why are you going through second person? Ask directly. And then I tell him that if you want to know what is the will of the Lord, can I tell you? और वो मुझसे जब पूछते हैं कि तुम जानना चाहते हो कि परमेश्वर की तुम्हारे लिए इच्छा क्या है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. तो वो इच्छा ये है कि तुम हर एक चीज में परमेश्वर को धन्यवाद दो, यही परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में तुम्हारे लिए है। In everything give thanks, for this is the will of God concerning you. तुम्हारे विषय में परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर की ये इच्छा तुम्हारे लिए है कि हर एक चीज में तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो। So church, did we discover the will of God today? क्या हमने परमेश्वर की इच्छा को जाना आज? What is His will? क्या है उसकी इच्छा? To give Him? Hallelujah. Amen. This is the will of God. This. Boy, this is the word. परमेश्वर की ये इच्छा है, यही इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद दें, और यही वचन है। It was not an inspired utterance given to me by the Holy Ghost. No, I'm telling you the way it is. पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई नहीं की कि मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको हमेशा धन्यवाद दें। It doesn't say for everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. वचन ऐसा नहीं कहता कि हर एक चीज में उसके लिए धन्यवाद दो। It says in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. लेकिन वचन कहता है कि सभी चीजों में प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है तुम्हारे विषय में। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? The Lord wants me to be very blunt. प्रभु चाहता है कि मैं आपसे आज सीधे सीधे बात करूं। If we are not giving Him thanks, you and I, we are out of the will of God. अगर आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। And being out of the will of God is dangerous. और परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहना काफी धोखादायक है। So if I'm not thanking Him for what He has done, what He is doing, and what He is about to do, I am almost out of the will of God. अगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद इन चीजों के लिए नहीं दे रहा हूँ कि जो उसने चीजें मेरे भूतकाल में की या वर्तमान में कर रहा है या भविष्य में करने वाला है, तो हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। Give Him thanks all the time. हर चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद करो। In everything give thanks, for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Hallelujah. हालेलुया। For example, if my body is sick, उदाहरण के लिए लेते हैं कि अगर मेरा शरीर में कोई बीमारी है, if there's a pain in my stomach, समझ लीजिए मेरे पेट में कुछ दर्द है, don't say, Lord, thank you for the pain in my stomach. तो ऐसा मत कहिए कि प्रभु धन्यवाद कि मेरे पेट में दर्द है। You will confuse the Lord actually. तो आप प्रभु को कंफ्यूज कर दोगे। And the Lord will say, Paul, just check your writings, man. And like, Nick, did you write for everything or in everything? तो आप पौलुस से कहोगे कि पौलुस तो आपने ऐसा कहा कि सभी चीजों के लिए या सभी चीजों में धन्यवाद दो। That guy is thanking me for his stomach pain. और वो ये बंदा जो है वो उसके पेट दर्द में मुझे धन्यवाद दे रहा है। Then the Lord is looking at Paul and said, double कर दूं क्या?
It doesn't say for everything give thanks. It says in everything give thanks. वचन ऐसा नहीं कहता कि सभी चीजों के लिए, लेकिन सभी चीजों में प्रभु को धन्यवाद दे। And you know, if there is a pain in your stomach, you can say, Lord, there is a pain in my stomach, but right now I thank you that by the stripes of Jesus I'm already healed. आमेन। तो अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको ऐसा कहना है कि प्रभु यद्यपि मेरे पेट में दर्द है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। Don't thank the Lord that you have an empty bank balance. परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए ना दे कि आपके बैंक बैलेंस में कुछ भी पैसा नहीं है। Thank him that my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए दे कि परमेश्वर सारी कमी घटों को यीशु मसीह के द्वारा पूरा करेगा। Thank the Lord that you are my shepherd and I shall not want. धन्यवाद दे कि प्रभु तू मेरा चरवा है और मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। All things are mine. सारी चीजें मेरी है। You became poor so that I should become rich. आप गरीब हुए कि मैं धनवान हो जाऊं। So thank him for that. और इस चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। Give him praise for it. इस चीज के लिए परमेश्वर को महिमा दे। Hallelujah. हालेलुया। You know, prayer is like an orchestra. जो प्रार्थना है वो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। You see the musicians playing, right? The keyboardist, the guitarist, everybody. तो आप देखते हैं कि जैसे कोई कीबोर्ड बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है। Is the orchestra made up of only one instrument? क्या ये जो ऑर्केस्ट्रा है क्या एक ही इंस्ट्रूमेंट का बना हुआ है? No, there are different instruments that harmonize and they play, right? सभी इंस्ट्रूमेंट एक साथ में बजता है और उसके बाद में वो बजाते हैं। Prayer is made up of different instruments. वैसे ही प्रार्थना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बनी हुई है। One of the instrument is thanksgiving. उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट है धन्यवाद देना। The other instrument is praise. दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्तुति करना। The other instrument is worship. और एक इंस्ट्रूमेंट है वो इसकी आराधना। Prayer is not only begging God. प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि केवल उसको मांगे, उसको भीख मांगे। या भीख नहीं मांगना है। प्रभु के जो बच्चे हैं वो कभी भीख नहीं मांगते हैं। कभी भीख मांगते नहीं और कभी भीख नहीं मांगेंगे। Amen. The children of God will never beg. Hallelujah. Amen. मालते खेलते ले। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। So we give thanks. तो हम धन्यवाद देते हैं। Give him thanks for everything. हर एक चीज के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। Give him thanks for even the little that you have. आपके पास जो थोड़ा है उसमें भी परमेश्वर को धन्यवाद दे। Saints, you know how many loaves and fishes were put into the hands of the master when he had to feed the multitudes? तो कितनी मछली और कितनी रोटी यीशु मसीह के हाथ में रखी गई जब उसको भीड़ को खिलाना था? Yeah. 5 loaves and the moment 5 loaves and 2 fishes was put into the hands of Jesus. तो जिस क्षण 2 मछली और 5 रोटी यीशु मसीह के हाथों में रखी गई, Jesus didn't look at the disciple with a weird look. तो यीशु मसीह ने ऐसा उनको उसके शिष्यों के पास ऐसे देख के ये नहीं क्या कह रहे क्या है ये, उनको साइड में नहीं लिया। तुम लोगों को समझता है कि अरे क्या कर रहे तुम लोग? Like, are you gone crazy? You expect me to feed 5,000 men with 5 loaves and 2 fishes? तुम ऐसा कैसे सोच रहे हो कि 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा मैं 5,000 की भीड़ को खिलाऊंगा? ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? ऐसा यीशु मसीह ने कहा क्या उसके शिष्यों से? Now guys, he didn't tell them, guys, you have put me in a tight corner. तो उसने ऐसा नहीं कहा कि शिष्यों तुमने मुझे ऐसा भी अलग थलग कर दिया है, You're going to damage my reputation. अभी आज तुम मेरी इज्जत का फालूदा कर दोगे। Don't you know that I'm the son of God? तुम जानते नहीं हो क्या कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? बैंगन का भरता बना दिया मेरा? No. नहीं। You know the scripture says Jesus didn't even take that bread and fish and he didn't even pray. वचन ऐसा नहीं, वचन कहता है कि उसने मछली लिया उसके ऊपर प्रार्थना की, ऐसा नहीं कहता। The scripture says he took the bread and the fish and gave THANKS. वचन कहता है कि यीशु मसीह ने मछली वाली रोटी वाली और कहा धन्यवाद। Jesus took the bread and fish and gave thanks, and because he gave thanks, that bread and fish, because of the thanks, began to multiply. आमेन आमेन। यीशु मसीह ने उस रोटी मछली को लिया और धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने धन्यवाद दिया उसके वजह से जो रोटी और मछली है वो बहुगुणित होना शुरू हो गई। You may be having a little amount in the bank, आपके बैंक में थोड़ा सा अमाउंट रहेगा, but if you just lift your hands and thank the Lord for that little amount, that amount will multiply greatly. आमेन आमेन। आप अगर उस छोटी रकम के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करोगे तो वो रकम बहुगुणित होना शुरू हो जाएगी। See, the Lord speaks to us through his word. परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात करता है। The Bible declares they shall be satisfied in famine.
परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सूखे में भी तृप्त होंगे। Abraham, Isaac, and Israel, everywhere they went, wherever there was famine, they had abundance. अब्राहम, इसहाक, जहां कहीं भी सूखा था वहां पर भी वो बहुतायत से बहुगुणित रूप में बढ़ रहे थे। Anywhere the famine hit, that famine never affected them. जो सूखा है कहीं पर भी आ गया, लेकिन उस सूखे का परिणाम अब्राहम, इसहाक के ऊपर नहीं हो रहा था। Even if the famine hits the earth, you and I, we are the seed of Abraham, Isaac, and Israel. It will not affect us. आमीन। सूखा इस धरती पे आएगा, फिर भी आप, क्योंकि आप अब्राहम की संतान हो, आप पर उसका कुछ भी असर नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। See, the scripture says they will lay up gold like dust. वचन कहता है कि उन्होंने सोना को जमा किया धूल के समान। They, who are they? We. वो कौन है? हम लोग है वो। It doesn't say we will gather, it says we will lay up. वचन ये नहीं कहता कि तुम जमा करोगे, वो कहेगा तुम बढ़ाते जाओगे। ऐसा नहीं बोला कि they will lay up पीतल like dust. पीतल के बारे में नहीं कहा। He said they will lay up gold like dust. वचन कहता है कि तुम सोना बढ़ाओगे धूल के समान। If you look at the world, how much dust is there in the world? अगर आप संसार में देखते हो तो कितनी धूल है संसार में। Even in this room itself, इस रूम में भी lot of dust. बहुत सी धूल होगी। When you go out of the house and when you come back after 1 week, जब आप एक हफ्ते के लिए अपने घर से बाहर जाते हो, जब वापस आते हो, you have closed all the windows. आपने आपके कमरों, अपने खिड़कियों को बंद करके रखा You है, have closed every door. आपने सभी दरवाजों को बंद किया। But again when you come back, लेकिन अगर आप एक हफ्ते बाद जब वापस आते हो when you open the door, और जब अपने दरवाजों को खोलते हो, what do you see? क्या देखते हो आप? Dust. धूल। Where did it come from? कहाँ से आई? It was there in the air. वो हवा में थी, It settled on the floor. वो उस जमीन पर बैठ गई। Jesus is saying, you will lay up gold like dust. पर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम वैसे ही सोने को बढ़ाओगे धूल के समान। And you know, you see dust more in dry season. और जो धूल है वो सूखे जो वातावरण है तब हमको ज्यादा दिखती है। In dry season में ज्यादा dust होता है, पता है आपको? Rainy season में नहीं. जब सूखा हुआ वातावरण होता है, सूखा वातावरण होता है, तब धूल हमको ज्यादा दिखती है। When the economy is crumbling and when it is dry, that is the time we will lay up much gold. जब अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही होगी, सूख रही होगी, उस समय हम पैसों को बढ़ाएंगे, सोने को बढ़ाते जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So give him thanks at all time. तो परमेश्वर को धन्यवाद हमेशा दे, Thank him for everything. हर एक चीज के लिए उसको धन्यवाद दे। In the book of Philippians 4:6 it says, be anxious for nothing. फिलिपियो 4:6 में कहता है कि किसी भी बात में तुम चिंता मत करो, But in everything by prayer and supplications. पर हर एक चीज में प्रार्थना और विनंती के द्वारा। With किसके साथ? louder, with किसके साथ? one more time, with किसके साथ? grumbling, कुड़कुड़ाहट के साथ, murmuring, बड़बड़ाहट के साथ, griping and complaining. कुड़कुड़ाने के No, साथ। it says with thanksgiving. लेकिन वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ। You know, there was one man of God who came to another man of God. तो एक परमेश्वर के जन थे, वो किसी और परमेश्वर के जन के पास आए, Because that man was feeling very low. क्योंकि वो जो दूसरा मनुष्य, परमेश्वर का जो मनुष्य था, वो काफी ऐसा उसको डिप्रेशन समान लग रहा था। Because this man who was feeling very low told him that I don't find a reason to thank the Lord. क्योंकि ये जो परमेश्वर का जो जन था वो कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने किस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, Because everything is going adverse. क्योंकि हर एक चीज मेरे विपरीत जा रही है। So that man sat with him तो जो दूसरा परमेश्वर का जन था वो उसके साथ में बैठा and he told him, और उन्होंने उससे कहा, you have thousands of reasons where you can thank the Lord. आपके पास हजारों ऐसे कारण है जिसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। And then he asked him what? तो फिर उस दूसरे मनुष्य परमेश्वर के जन ने पूछा कौन से कारण? So he told him, तो उन्होंने कहा, ये अंगूठा ना ऐसे हिला, ऐसे अपने अंगूठे को हिलाओ। पेन है क्या उसमें? इज इट पेन? इज इट पेनिंग? दुख रहा नहीं है ना? इज इट पेनिंग? वहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंगूठे दुख रहे हैं. There are many people whose thumb is paining. If it is not paining, just thank the Lord. Dada, I thank you that there is no pain in my thumb. तो अगर आपके अंगूठे में पेन नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो केवल उसको धन्यवाद दे कि परमेश्वर पिता धन्यवाद कि मेरे अंगूठे में दर्द नहीं है। Dada, I thank you that there is no pain in my hand.
प्रभु धन्यवाद मेरे हाथ में दर्द नहीं है। Dad, I thank you that there is no pain in my shoulders. प्रभु धन्यवाद मेरे कंधों में कोई दर्द नहीं है। Dad, I thank you that there is no pain in my jaws. मेरे जबड़े में दर्द नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। By the time he had reached the toe, जब तक उसके पैरों की उंगली तक जब वो पहुंचे, this man was flat on his face with his hand lifted up and giving glory to Jesus. तो ये दूसरा मनुष्य था, वो धरती पर से लेट के परमेश्वर का आराधना कर रहा था। You know, whenever the Israelites, they murmured and griped and complained, they opened the door for the serpent to come and bite them. तो आपको पता है कि जब भी इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाहट की कंप्लेन की, तब तक उन्होंने सांपों के लिए दरवाजा को खोला, They were not thankful to God. क्योंकि वो धन्यवादित नहीं थे। Whenever they fall short of water, they started griping and complaining. जब उनको पानी की कमी हुई तो उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया, And the scripture says they perished on the way. और वचन कहता है कि रास्ते में ही उनका नाश हुआ। Saints, all the scripture was written for our example. संतो सभी वचन हमारे लिए उदाहरण के रूप में लिखे गए। So if they murmured, griped and complained, they were bitten by a serpent, it can happen to us also. अगर उन्होंने कुड़कुड़ाया और कुड़कुड़ाने के कारण जब उनको सांपों ने डांटा, तो वो हमारे साथ भी वैसा हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, if you read the book of Luke chapter अगर हम 17, please open to Luke chapter 17. There's a marvelous scripture over there. हम लूका उसका 17 अध्याय को खोलेंगे, वहां पर अद्भुत सी चीज लिखी हुई है। And from verse 11, I think. Yeah. और वचन 11 के आगे, लूका 17 उसका 11 से आगे, Yeah. 17। I'll tell you what happened. मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. He entered into a certain village, and there met him 10 men who were lepers. लूका 17 उसका 11 से आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। There were how many lepers? कितने कोढ़ी थे? 10 fingers के साथ 10 lepers थे वो. जैसे 10 उंगलियां है वैसे वो 10 कोढ़ी थे। Now, you know, it was very easy for the Lord to tell them, get healed. तो प्रभु के लिए काफी आसान था कि उनसे कहे कि चंगे हो जाओ, Because he did it earlier. क्योंकि उसने पहले कर दिया था वैसा। He just spoke to the leper and he was healed. एक कोढ़ी था जो परमेश्वर ने उससे कहा कि चंगे हो जाओ, वो चंगा हो गया। You see, the Spirit of God moved the Lord Jesus Christ. आप जानते हो कि परमेश्वर का जो आत्मा है उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह चले। Jesus was always led by the Spirit of God. प्रभु यीशु मसीह हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा ही चले। So the Lord just gave them a simple instruction. तो प्रभु ने उन कोढ़ियों को एक इंस्ट्रक्शन दिया। The Lord told them, go and show yourself not to the doctor but to the priest. तो यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों से कहा कि अपने आप को डॉक्टर के पास नहीं, लेकिन जो याजक है उसको दिखाओ। ऐसे नहीं बोला वेद के पास में जाओ. No. He said, go and show yourself to the priest. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम डॉक्टर को दिखा, लेकिन उसने कहा कि तुम जाओ और याजक को दिखाओ। Why priest? क्यों याजक? Because that leper, when he goes to the priest is going to give him a certificate that he is clean. क्यों याजक? क्योंकि जब वो याजक के पास जाएंगे तब वो याजक उनको सर्टिफिकेट देगा कि तुम शुद्ध हो। But they were already unclean. How could they go to the priest and show themselves? They'll be stoned. लेकिन ये तो पहले ही अशुद्ध है, तो वो याजक के पास कैसे जा सकते? अगर वो याजक के पास जाएंगे तो उन पर पथराव किया जाएगा। They took a step of faith. तो उन्होंने विश्वास का कदम को लिया। And the scripture says, as they were going, they found themselves that they were healed. और वचन कहता है कि जैसे वो जा रहे थे वैसे ही उन्होंने पाया कि वो चंगे हो गए हैं। And the word declares that out of them, one, when he saw that he was healed, he came back to the Lord Jesus Christ. और जब ऐसा हुआ तब 10 में से एक ने देखा कि वो चंगा हो गया है, तो वो वापस यीशु मसीह के पास आया। And the Lord looked at him and said, were there not 10? Where are the 9? Were they not found to give glory to God? Save this foreigner. तो यीशु मसीह ने कहा कि अरे तुम अकेले, क्या 10 लोग नहीं थे? क्या इकलौता है जो परमेश्वर को धन्यवाद देगा? And the Lord tells him, go, your faith has made you whole. और यीशु मसीह ने फिर कहा कि जाओ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Now the word WHOLE is a very powerful word. तो जो पूर्ण है, होल, उसका वो शब्द का मतलब बहुत पावरफुल है। Because the Bible declares this leper came and he gave thanks to Jesus. क्योंकि वचन कहते हैं कि ये वो एक कोढ़ी वापस यीशु मसीह के पास आया धन्यवाद देने के लिए। That's what the Lord highlighted him and told him that
Were they not 10? Where are the 9? Were they not found to give thanks to God? Save this foreigner. वही तो यीशु जब वो इकलौता यीशु के पास आया तो यीशु ने उससे कहा कि क्या 10 शुद्ध नहीं हुए, तो वे 9 कहाँ है? तो क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? Then the Lord tells him, go, your faith has made you whole. और उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा मैंने परिपूर्ण किया है। Saints, you got to understand something. In those days, they didn't have vaccines for leprosy. तो आपको एक समझने की जरूरत है कि उस समय जो कोढ़ है उसके लिए वैक्सीन नहीं थी। Leprosy eats the parts of the body. They start eating your finger, your nose. The parts of the body gets eaten up by leprosy. तो जो कोढ़ है वो आपके शरीर को खाना शुरू करता है, कि एक एक भाग को खाना शुरू कर देता है। And in those days, they didn't have vaccines for it. और उस समय वहां पर कोढ़ के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी। All the other 9, when they went, they did not come back and give glory to Jesus. तो जो 10 में से जो 9 लोग थे वो वापस नहीं आए पर यीशु को धन्यवाद देने के लिए। They went home missing their physical parts. वो वापस गए उनके शरीर के कुछ भाग को बिना भाग के बड़े हुए। They were healed, but they went home like this. They went home missing their physical parts. वे चंगे तो हो गए लेकिन उनके शरीर के जो भाग थे वो वापस नहीं आए थे। But the one who came and gave thanks, his fingers grew back. आमीन। लेकिन जो अकेला जो वापस आया उसके शरीर के वो भाग वापस से बढ़ के आए। Hallelujah. हालेलुया। You know, the best is yet to come. When after you have received your miracle, you start giving him thanks. जो उत्तम है वो आपके पास आने का है। अगर आपके चमत्कार होने से पहले आप उसको धन्यवाद देना शुरू करते हो। Thank him at all times. हमेशा उसको धन्यवाद दे। Lord, thank you for the air that I am breathing right now. धन्यवाद प्रभु इस हवा के लिए जिसका मैं श्वास ले रहा हूँ। Thank you for the clothes that you have given me to wear. धन्यवाद इस कपड़ों के लिए जो मैं पहन रहा हूँ। Thank you for the good shoes that I am wearing. धन्यवाद इस अच्छे शूज के लिए जो मैं पहन रहा हूँ। Thank you for the water that you have given me to drink. धन्यवाद उस पानी के लिए जो आपने मुझे दिया पीने के लिए। Thank you for everything. धन्यवाद हर एक चीज के लिए। Thank you for your word. धन्यवाद आपके वचन के लिए। Thank you for your son Jesus. धन्यवाद आपके पुत्र यीशु के लिए। Thank you for the anointing that you have given me. धन्यवाद उस अभिषेक के लिए जो आपने मुझ पर दिया है। Thank you for good brothers and sisters in Christ that you have given me. धन्यवाद अच्छे भाई बहन जो मसीह में आपने मुझे दिए हैं। Thank you for good co-workers that you have given me. धन्यवाद अच्छे साथ में काम करने वालों के लिए। Thank you for people who love me that you have given me. धन्यवाद पिता जो अच्छे लोग आपने मुझे दिए हैं। You know, the Bible declares in the book of Romans, people fell into trouble because they were unthankful. वचन कहता है रोमियो में कि लोग परेशानी में इसलिए गए क्योंकि वो धन्यवादित नहीं थे। If we stop thanking the Lord, we are already out of the will of God. अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद देना रोकेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गए हैं। You know, if you thank the Lord for the cycle that He has given you, definitely He will give you a jet. अगर आप परमेश्वर को आपके पास जो साइकिल है उसके लिए धन्यवाद देते हो तो प्रभु आपको जेट एरोप्लेन देगा। If you thank the Lord for the strong legs that He has given you that you can walk straight, He will make you completely whole. Amen. अगर आप आपके पैरों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हो कि आपको चल रहे हो तो परमेश्वर आपको परिपूर्ण बना देगा। When you start, you know, we cultivate this habit of thanking the Lord at all times. Saints, we will live a glorious, awesome, blessed life, I'm telling you. संतो अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारी आदत बना देंगे तो हम एक महिमा वाला जीवन जीना शुरू करेंगे। If your boss has not yet given you an increment, thank him. Thank the Lord that He has at least given you a job. अगर आपके बॉस ने आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया तो आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको एक नौकरी दी है। Thank the Lord for at least with the salary that you have, you can take care of your family. धन्यवाद दे परमेश्वर की उस पगार के लिए जिसके द्वारा आप अपने परिवार का चिंता कर सकते हो। Remember, thanksgiving will bring multiplication in your life. आमीन। धन्यवाद देना आपके जीवन में बहुगुणित करने को लाएगा। You know, we got to put this into practice. It doesn't happen automatic. ये अपने आप नहीं होता, हमें इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Saints, you feel like me, okay? As a son of God also and as a man of God, you feel like I always feel like thanking the Lord. क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं जो परमेश्वर का जन हूँ तो मुझे हर बार परमेश्वर का धन्यवाद देने की इच्छा होती होगी? ऐसा आपको लगता है? I feel like getting into the bathroom and crying loudly. मेरी इच्छा ऐसी होती है कि मैंने बाथरूम में जाकर जोर जोर से रोना चाहिए। No, but I have made up my mind. No matter what, sweet Jesus, I give you praise. Amen.
लेकिन मैंने मेरे मन को बना लिया है कि प्रभु यीशु मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। Dearest Dada, I thank you for everything. धन्यवाद पिता हर एक चीज के लिए, I thank you for everything. हर एक चीज के लिए आपका धन्यवाद, I thank you for everything. हर एक चीज के लिए आपका धन्यवाद। Wives, give thanks to God for a blessed husband that God has given you all. पत्नियों आपके पति के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए आपका परमेश्वर का धन्यवाद करें। Husbands, thank the Lord unceasingly for the blessed wife that He has given you all. पतियों अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, ना रुकते हुए धन्यवाद दीजिए। The more you thank the Lord for your wife, the better she will become. जितना ज्यादा परमेश्वर को आपकी पत्नी के लिए धन्यवाद देंगे उतनी बेहतर वो होती जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। All married couples, you want husband and wife to get better, right? सभी पति पत्नी की इच्छा है कि आपके जो पार्टनर है पति पत्नी है वो बेहतर होते जाए। Thank Jesus for your wife. Thank Jesus for your husband. You will get better and better and better and better every day. परमेश्वर का आपके पति के लिए आपके पत्नी के लिए धन्यवाद दे तो वो बेहतर 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 होते जाएंगे। Thank God for you have godly children. धन्यवाद दे कि आपके जो बेटे बेटियां है वो परमेश्वर के भय में चलते हैं। You know, I was just thanking the Lord for Aslan and for Avi. मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था एस्लन और अवी के लिए। And इतना स्टर हो गया मैं कि मैंने उनका दोनों का फोटो मेरे स्टेटस पे डाल दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि then I put their photos on my status. कितने मम्मी दोनों मम्मी ने देखे क्या? Yeah, I replied also. And I made a comment also over there. और मैंने वहाँ पर एक कमेंट भी लिखा। Two upcoming spiritual giants. दो आने वाले परमेश्वर के महान योद्धा। Hallelujah. हालेलुया। So we're going to be thanking the Lord for our children. तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर को अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दे। Thanking God for godly parents that He has given us. धन्यवाद दे अपने माता पिता के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। Thanking God for godly siblings that He has given us. परमेश्वर का धन्यवाद दे कि जो भाई बहन परमेश्वर ने हमें दिए हैं। Thanking God for giving good co-workers. अच्छे जो साथ में काम करने वाले लोग हैं परमेश्वर ने हमें दिए उसके लिए धन्यवाद दे। I know many of us don't like our boss. मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने बॉस को पसंद नहीं करते। But anyway, we'll give thanks to Jesus for our boss. लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हमारे बॉस के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The moment you start thanking the Lord for your boss will become very sweet, gentle, tender, kind, and everything they will do for you. जिस क्षण हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हमारे बॉस के लिए तो वो अच्छा बर्ताव हमारे साथ करना शुरू करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Just cultivate the habit of thanking Him at all times. इसको आदत बना ले कि हर एक चीजों में परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। David said, I will bless the Lord at all times. दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर का हर एक चीज में हमेशा धन्यवाद दूंगा। His praise shall be continually in my mouth. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख पर रहेगी। My soul shall make a boast in the Lord. और मेरा प्राण परमेश्वर में घमंड करेगा। The humble shall hear thereof and be glad. और जो नम्र है वो सुनेंगे और धन्यवादित होंगे। Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. प्रभु के नाम का धन्यवाद करो और उसके नाम को मुझे उठाए एक साथ में। I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. मैंने परमेश्वर को ढूंढा और उसने मुझे मेरे सारे डर से छुटकारा दिया। They looked unto Him and they were radiant and they were lightened and their faces were not ashamed. और जिन्होंने उसकी ओर देखा उनके चेहरे प्रकाशमान हुए। This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. इस गरीब मनुष्य ने पुकारा और परमेश्वर ने सुना और उसके सब तकलीफों से छुटकारा दिया। The angel of the Lord encampeth round upon them that fear Him and delivereth them. परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके जो लोग हैं जो उससे डरते हैं उनके चारों ओर रहते हैं। Oh, taste and see that the Lord is good. चखिए कि परमेश्वर कितना भला है। Blessed is the man that trusteth in Him. धन्यवादित है मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। Oh, fear the Lord, ye saints. परमेश्वर के संतो उसका भय मानो। For there is no want to them that fear Him. For there is no want to them that fear Him. जो उसका भय मानते हैं उनके लिए कोई भी तकलीफ नहीं। The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. जो जवान सिंह हैं उनको कमी होती है लेकिन जो परमेश्वर को खोजते हैं उनको किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। Come ye children, hearken unto the Lord. Hearken unto His voice. आओ बच्चों उसके नाम को पुकारो। Giving Him thanks. उसको धन्यवाद दो। Thank Him at all times. हमेशा उसको धन्यवाद दो। Bless Him at all times. उसको धन्यवाद दो। Praise Him at all times. हमेशा उसकी स्तुति करो। Glorify His blessed name. उसके नाम की महिमा करो। Hallelujah. हालेलुया। You know, we all could be thanking the Lord for the chair that He has given us to sit over here.
We're going to be thanking the Lord for the chair that He has given us to sit over हमें here. परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जो चेयर उसने हमें दी है बैठने के लिए। We're going to be thanking the Lord for the transport that He gave us to come and sit over here. हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने जो हमें गाड़ियां दी है आने जाने के लिए। We're going to be thanking the Lord for the money that He gave, that we can put fuel in the petrol. धन्यवाद दे And come over here. परमेश्वर का धन्यवाद दे कि उसने हमें पैसे दिए कि हम हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाल के यहाँ आ सके। You know, if we start thanking the Lord, I'll tell you 24/7 will be not enough to thank Him. अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो आप जानोगे कि 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे हम उसको धन्यवाद देने के लिए। There's so much benefits that He has bestowed upon us. इतने सारे उसने जो बेनिफिट है वो हमारे लिए दिए हैं धन्यवाद के रूप में। Don't be worried about what is not yet come. Just thank the Lord for what is already done. जो आने वाली चीज है उसके बारे में चिंता ना करें, लेकिन आपके पास जो है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। If you thank the Lord, there won't be disappointment. There will be divine appointment. आमीन। अगर आप धन्यवाद दोगे परमेश्वर को तो आपको निराशा नहीं होगी, लेकिन चीजें आपके लिए काम करती जाएगी। I said, if you thank the Lord, there won't be disappointments. There will be divine appointment. अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे तो आपको निराशा नहीं होगी, लेकिन आपके लिए एक ठहराया हुआ चीज परमेश्वर करेगा। Thank Him at all times. हमेशा उसको धन्यवाद दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, wonderful Father. धन्यवाद पिता। Thank you, blessed Lord. धन्यवाद पिता। Thank you, glorious Father. धन्यवाद अद्भुत पिता। Thank you, Dada. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Dada. धन्यवाद पिता। Hallelujah. हालेलुया। I know the Lord has ministered to each and every one of us today. मैं जानता हूँ कि प्रभु ने हम में से हर एक की सेवा Can की we just होगी। stand? Can we just stand up? क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? Can I have the musicians on the stage? Thank you, Lord. I was just reminded about one scripture verse, just only one scripture verse from John, John chapter 6, because this goes with the message. तो मुझे एक वचन प्रभु ने याद दिलाया, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। Maybe another 4 or 5 minutes. 4 और 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। This is John chapter 6. यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। This is very beautiful. बहुत ही सुंदर है। Yeah. I want Pastor to read this particular verse, if possible, in Hindi. John chapter 6, verse 23. Saints, this is very powerful. Very powerful. Man, this gets into your spirit, no? Oh. Somebody give the mic to Pastor. Thank you. John chapter 6, verse 23. यूहन्ना 6 उसका 23। Thank you, Lord. Lift your hands and thank Him. Thank you, Jesus. अपने हाथों को ऊंचा कर उसको धन्यवाद दे। Till Pastor gets the verse. We give you praise. धन्यवाद ईश्वर जी. Listen, please listen. ध्यान से सुनिए। यूहन्ना का 6 और उसका 23वां वचन। तो भी जो छोटी नावें तिबियस से उस जगह से निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। Wow. Now nowhere in the scripture speaks about Jesus multiplying the bread over here. यहाँ पर वचन में कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने जो रोटी है उसको बहुगुणित किया। You know, it has to be, the miracle has to be magnified, right? जो चमत्कार है उसको बढ़ना चाहिए वो, बराबर? Right? Scripture में miracle के बारे में लिखना चाहिए, right? वचन में चमत्कार के बारे में लिखना चाहिए था। But here the miracle के बारे में कुछ बोला ही नहीं। So here there is nothing written about the miracle. उसमें बोला है कि जहाँ पे प्रभु ने धन्यवाद दिया था। Hallelujah. Amen. It is written that where
Jesus gave thanks. That means Jesus didn't emphasize more on the miracle, he emphasized more on thanks, because the miracle came because of the thanks. Amen. यहाँ पर कहीं भी यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में नहीं लिखा गया, पर यीशु मसीह ने जहाँ धन्यवाद दिया उसके बारे में लिखा गया, क्योंकि वो चाहता है कि हम उस बात को महत्व दे कि परमेश्वर धन्यवाद चाहता है हमसे. Don't magnify the miracle, magnify the miracle worker. Amen. चमत्कार को बड़ा ना कीजिए, लेकिन जो चमत्कार करने वाला है उसको बड़ा कीजिए. His name is Jesus. उसका नाम है यीशु. Hallelujah. Hallelujah. His name is Jesus. उसका नाम है यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. So the particular scripture says that where the Lord had given thanks, वहाँ वचन ऐसा कहता है कि वो जगह जहाँ यीशु ने धन्यवाद दिया. this is the Holy Ghost putting that particular verse over there. ये पवित्र आत्मा है जिसने ये वचन वहाँ पर रखा. For whom? किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए. For you and for me. Hallelujah. Hallelujah. Then lift your hands. अपने हाथों को ऊंचा करें. Hallelujah. यीशु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए हम कहते हैं यीशु से प्यार है. इसलिए हम कहते हैं यीशु से प्यार है हमें, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे. प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है हमें, इसलिए हम कहते हैं यीशु से प्यार है हमें, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे. प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे. I want to pray for a particular family which the Lord just dropped into my heart. मैं एक परिवार के लिए When I was प्रार्थना sitting, when I करना was sitting चाहूँगा. there, मैं एक परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला. I want Mishu and his family to come and stand over here. I want to just speak a blessing over your life. मैं चाहता हूँ कि मिशु उनका परिवार आगे आए. Church, would you please stretch forth your hands towards them? चर्च, क्या हमारे हाथों को हम बढ़ाएंगे इस परिवार के लिए, क्या परिवार की ओर? You know, the Lord tells me that the Lord has not altered His plans for your life. प्रभु कहना चाहता है कि परमेश्वर की तुम्हारे लिए बड़े प्लान से योजनाएं हैं. Yeah, and He has not altered His plans. He has not changed His plans. उसने उसके जो वचन, उसका जो प्लान है उसको बदला नहीं है. I see this word countries, COUNTRIES. मैं देशों को मैं देख रहा हूँ आपके लिए. God has called your entire family to countries.
परमेश्वर ने आपके परिवार को बुलाया कि आप देशों में जाओगे। Your entire family will travel throughout the nations of the earth, preaching the saving and the healing gospel to the ends of the earth. आप देशों में जाओगे, उसके राज्य का सुसमाचार का प्रचार करने। एक परिवार को, अपने परिवार को लेकर आप जाओगे। God has called the entire family परमेश्वर ने पूरे परिवार को बुलाया है to take the saving and the healing gospel to the ends of the earth. उसके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए इस संसार के अंत तक। Father, I pray that you will continue to reveal your plan to them, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आपके प्लान को इनके जीवन में आप बताना शुरू करोगे, That the eyes of their understanding will be flooded with light, Lord. कि उनकी जो समझ की आंखें हैं वो प्रकाशमान होती जाएगी, That they will know what is the hope of your calling. कि वो जानेंगे कि आपकी जो बुलाहट है उसकी आशा क्या है, What are the riches of the glory of your inheritance? कि आपकी जो विरासत है उसकी धन संपत्ति क्या है, उसकी महिमा क्या है, And what is the exceeding greatness of your power towards them who believe? और आपकी जो सामर्थ्य है वो बहुत ऐसे उनके लिए जो आप पर विश्वास करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you that you have kept them in divine health. धन्यवाद कि आपने उनको दैवीय स्वास्थ्य में रखा है। There is a multiplication that is coming into your lives. बहुगुणित होना आपके जीवन में आ रहा है। As you continue to fellowship with the Lord, He will start revealing glorious plans to your life. तो जैसे आप प्रभु के साथ में सहभागिता करोगे तो परमेश्वर उसकी योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करना शुरू करेगा। Make sure that when you are sitting with the Lord alone, spend much time with Him. तो जब आप परमेश्वर के साथ बैठोगे तो ये निश्चय कीजिए कि आप उसके साथ ज्यादा देर तक बैठोगे। Sit with a pen and a notebook, एक पेन और नोटबुक के साथ आप बैठिए, and the utterance will come to your spirit. और जो चीजें हैं वो आपके आत्मा में आएगी, Even the name of the countries the Lord will start giving you. और जो देश है वो भी परमेश्वर आपको देना शुरू करेगा। Monsieur, the Lord tells me He's going to take it to Ukraine. परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि परमेश्वर आपको यूक्रेन लेके He's जाएगा, going to take it to Ukraine. यूक्रेन लेके जाएगा परमेश्वर, And you're going to preach the gospel to that nation. और आप यूक्रेन में प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करोगे। I see you before you a huge crowd. मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े भीड़ के सामने हो, And I see you with a yellow guitar. मैं आपको देख रहा हूँ कि आप एक पीले कलर के गिटार के साथ में हो, And you are there alone on the stage and you are worshiping the Lord. आप अकेले हो स्टेज पर परमेश्वर की आराधना करते हुए, And there are mighty demonstration of God's power that is taking place in Ukraine. और परमेश्वर के जो सामर्थ के प्रकटीकरण है उस यूक्रेन में बहुत ऐसे से होंगे, This is going to be the headlines of the nation. और ये उस देश के मुख्य समाचार होंगे। The newspapers will be flooded with headlines that Jesus Christ heals. और न्यूज़पेपर में ये छपेगा कि यीशु मसीह चंगा करता है। I give you praise, Father. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, I give you glory. आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। Thank you, Master. धन्यवाद पिता, We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Oh, hallelujah. इसलिए मैं कहता हूँ यीशु से प्यार है हमें और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। Lord, I thank you that you have healed people in this place, Lord. धन्यवाद पिता, आपने लोगों को यहाँ चंगा किया है। I command every blood pressure to be stabilized in the name of Jesus. मैं ब्लड प्रेशर को आज्ञा देता हूँ कि नॉर्मल हो जाए यीशु I के नाम command से। every sugar problem to leave them for good in the name of मैं Jesus. डायबिटीज को, शुगर को आज्ञा देता हूँ कि इनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। I command every heaviness in the head to go in Jesus' name. मैं सारे सिर दर्द को आज्ञा देता हूँ कि इनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। I speak to finances right now that are locked to be unlocked in the name of Jesus. मैं आर्थिक परिस्थिति से कहता हूँ कि खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। I command them to be manifest in the name of Jesus. मैं कहता हूँ कि प्रकट हो यीशु के नाम से। Now lift your hands and thank Him. अपने हाथों को ऊंचा करे, उसको धन्यवाद दे। We thank you, Lord हम Jesus. यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते We हैं। thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give you praise, Lord. हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, Yours is the kingdom. राज्य आपका है प्रभु, Yours is the power, Lord. सामर्थ्य आपकी है प्रभु, Yours is the glory. महिमा आपकी है प्रभु। There's somebody who's watching me whose name is Shamil. कोई तो भी ऑनलाइन देख रहा है जिसका नाम है शामिल। Shaman, you are being made whole in the name of Jesus. शामिल, आप परिपूर्ण हो गए हो यीशु के नाम से। Atharva, God is touching you. अथर्व, परमेश्वर आपको छू रहा है। O'Neill, ओनियल,
That stomach pain is leaving you. जो पेट का दर्द है आपको छोड़ के जा रहा है, Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। I don't have to call you healing. Just receive it. The healer is in the house. मुझे आपकी चंगाई को पुकारने की जरूरत नहीं है, अपने चंगाई को ग्रहण करें, क्योंकि चंगा करने वाला यहाँ उपस्थित है। Start moving that knees. That knee pain is leaving you right now. In the name of Jesus. That joint pain is gone. In the name of Jesus. अपने घुटनों को मोड़ना शुरू कीजिए, जो दर्द था घुटनों में वो आपको छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। That pain in the hip is gone right now in the name of Jesus. आपके जो पीछे जो दर्द था वो आपको छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। That headache is gone in the name of Jesus. सर दर्द आपको छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। That pain in the ear is gone in the name of Jesus. कान में होने वाला दर्द आपको छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। I don't have to call your healings. The healer is here. Receive your healing in Jesus' मुझे name. आपकी चंगाई की घोषणा करने की जरूरत नहीं, आपकी चंगाई को आप ग्रहण कीजिए। Your body is a temple of the Holy Ghost. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Sickness cannot thrive in that body. बीमारी आपके शरीर में रह नहीं सकती। No sickness can co-inhabit with the Holy Ghost. No sickness can ever co-inhabit with the Holy Ghost. बीमारी और पवित्र आत्मा एक साथ नहीं रह सकते। Your bodies are revitalized and rejuvenated in the name of Jesus. आपका शरीर ताजा और नया बन रहा है यीशु के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं We प्रभु, give you the glory. हम आपको महिमा देते We हैं। thank you, Lord, for everything that you have done this afternoon, Lord. हम इस दोपहर में आपने जो कुछ किया उन हर एक चीज के लिए आपका धन्यवाद देते We हैं। vow to give you the glory. हम वचन देते हैं कि प्रभु हम आपको ही महिमा देंगे। Come on, lift your hands and give him the glory. अपने हाथों को ऊंचा करें, उसको धन्यवाद दे, Give him the praise. उसको स्तुति दे, उसको महिमा दे। He deserves it all. वो उसके योग्य है, All of it. All of it. उस सारी चीजों के, उस सारी महिमा के योग्य He वो is है, the, he is the one who has done it. वो है जिसने किया है, He is the one who is doing it. वो वही है जो वो कर रहा है, And he is the one who will continue to do it. और वही है वो जो करते रहेगा। He is Jesus. वो है यीशु, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord God. धन्यवाद पिता, I give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं। Whatever fear that you have, that fear about something that will happen, it will never happen. जो आपको डर था कि ऐसा कुछ होगा, वो कभी नहीं होगा। He has not given you the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. उसने, यीशु मसीह ने आपको डर का नहीं, लेकिन उसने सामर्थ का और अच्छे मन का परमेश्वर ने आपका दिया, आत्मा दिया Remember, है। the earth is the Lord's and the fullness thereof. क्योंकि जो पृथ्वी है वो परमेश्वर की, और उसकी जो बहुतायत है वो भी परमेश्वर की है। He changes the times and the seasons. वो समयों को बदलता है, He is the game changer. वो खेल को बदलने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया, You are a victor. आप महाविजयी हो, More than a conqueror in Christ Jesus. महाविजयी हो यीशु मसीह में। You are the one who lives in divine health. आप वो हो जो दैवीय स्वास्थ्य में चलते हो, And you are prosperous. और आप समृद्ध हो In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Hallelujah, Father. हालेलुया पिता, Hallelujah, Lord God. हालेलुया प्रभु, Hallelujah, Almighty Savior. हालेलुया यीशु मसीह, Hallelujah, glorious God. हालेलुया अद्भुत Thank you, परमेश्वर। Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, 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 Jesus. धन्यवाद Thank यीशु, you, wonderful Father. धन्यवाद अद्भुत पिता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah, Abba. हालेलुया पिता, Hallelujah. हालेलुया। We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं, We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमेन। Give the Lord a mighty hand of praise. प्रभु को धन्यवाद दे तालियां बजाकर। I would like to call upon Pastor Ganesh. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए। आमीन। प्रभु को बहुत धन्यवाद देंगे। हर समय हमको प्रभु को धन्यवाद देना है, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अपने जीवन में हर एक चीज बदलते जाएगा। हालेलुया। हमारा प्रार्थना वही है। प्रार्थना क्या है कि धन्यवाद करने वाला प्रार्थना होना चाहिए, कुरकुर करने वाला प्रार्थना नहीं होना चाहिए, कंप्लेंट करने वाला नहीं होना चाहिए। हर एक बात के लिए धन्यवाद देना है कि प्रभु मैं जिंदा हूं, श्वास ले रहा हूं, ये सबसे बड़ा गवाही है कि तूने मुझे जिंदा रखा है। प्रभु खाना पीना सब कुछ मुझे दिया है। प्रभु मैं चल सकता हूं, सुन सकता हूं। हर एक चीज को स्मरण करके हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो उसको धन्यवाद देंगे हर समय। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो कंप्लेंट करते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम सब परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को नहीं जानता है। हर एक व्यक्ति जान रहा है और हम सबको प्रभु उसके आत्मा के द्वारा तैयार कर रहा है।
हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, आपको बहुत धन्यवाद देते पिता कि ये कलश को आप तैयार कर रहे हो प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक में प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हर एक के जीवन को आप संवार रहे हो प्रभु जी। हम सब प्रभु जी आपके साथ एक हो रहे हैं पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपके ज्ञान और पहचान में हम सब की आप उन्नति कर रहे हो प्रभु जी, और हम सब प्रभु जी मिलकर आपको धन्यवाद करने वाले बन रहे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी, एक दूसरे से सहभागिता कीजिए और आधा घंटा प्रार्थना करके आप सब जा सकते हैं। आमीन।